Assalamualaikum everybody. Today we have invited Rahim Baloch as our guest. He's a miniature artist and he graduated from NCA in majors in miniature painting with distinction. And since then, he has done many solo exhibitions, including one called Microcosm of Innocence in 2015, which he did in Chokandi Art Gallery, Karachi. And then he did two exhibitions in Kasi Art Gallery. And one he did in Satran Gallery, which was called Silver Lining, which was back in 2020. And Rahim has worked in a range of media, including painting and installations. His subject matter ranges from a very personal and emotional narrative about his own relationship with his late father to a very broader social commentary on prevalence of violence in the society in specific contexts, such as target killings, missing persons in Balochistan, APS attacks, etc. Overall, Rahim's work has a very serene and mystic quality to it. He has developed his own personal vocabulary, which includes motifs such as honeybee, dandelions, jasmine flower, and honeycomb, which reappear in his work to convey both his personal and social message. The hyper-realistic rendition of honeybee and the illustration of fancy flight of dandelion stuffed with seeds across his painting surfaces makes his work mesmerizing. Today we'll be talking to him about how did he develop his personal vocabulary, which he uses to represent his relationship with his father and his community as well, and the in his work. So very warm welcome to you, Rahim. Thank you so much for joining us today. Thank you so much for inviting me. I'm feeling honored that you invited me. Okay, thank you so much. Rahim, I will be showing your work and then you can describe your work, like about the motives and how your work developed or whatever. तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि जो भी आपने किया. मेरे पास जो collection है, तो I will be sharing this with the class. मैं share कर देती हूँ. जी. जी. अच्छा. Can you see it? हाँ. जी जी. I'm talking basically in everywhere I'm talking about. ये कैसे develop हुआ? अच्छा, ये इस तरह से develop हुआ, इसके background पे सारे फर्ज है. I'm thinking that the life is beautiful without of violence. Okay. जब इंसान की जिंदगी में सुकून होता है तो कितनी खूबसूरत लाइफ है. तो मैं उस सुकून को पेंट कर रहा हूँ जो कि एक स्काई पे है. तो आपने रूमी की सुनी है, फील्ड आई विल मीट यू देयर, जो तबरेज को कहता है. तो देयर इज नो राइट एंड नो रॉन्ग. तो वो एक ऐसी बात करता है जो कि इस दुनिया से एक अलग सी बात करता है, जहाँ पे सिर्फ सुकून की बात करता है, खूबसूरती की बात करता है. तो मैं जो ये पेंटिंग बना रहा था, मैं ये उस सेंस से बना रहा था कि मैं एक खूबसूरती की बात कर रहा हूँ. आप देखिए सारी एक फैंटेसी दिख रही है कि एक डैंडिलियन निकल रहा है बादलों से और उस पे अली भी बैठा हुआ है और अभी विदाउट ऑफ ग्रेविटी है सारा, जो कि एक आसमान का सीन है और उसमें डैंडिलियंस भी है और एंजल्स भी है. तो बेसिकली मैं एक जो माइंड की खूबसूरती है जहाँ पे मैं सुकून फील करता हूँ, तो वो मैं दिखा रहा हूँ उसमें. ठीक है. यहाँ पर भी ऐसे ही है. ये भी आपके जी जी. ये एक पेंटिंग थी जिसमें अगर आप देख रहे हैं कि वो फ्लावर्स में सारे वो थे, फ्लावर्स में सारे पोर्ट्रेट्स थे और अनिकुम पे काफी सिल्वर डॉट्स है जो कुछ उसमें, लेकिन उन पे ब्लड लगा है. तो मैं दिखा रहा हूँ कि जो बेसिकली जो हमारा फ्लैग है
वो तो हमने वो की थी। जो चांद तारा है, जो तारे की जगह पे मैंने अनीबी रखी जो मैश हो रहा है, और चांद की जगह पे मैंने वो सारी फ्लावर्स रखे और एंजल्स रखे जो कि मिट रही है सारा कुछ। तो मैं दिखा रहा हूँ कि वायलेंस ने कैसे चेंज कर दी ना मीनिंग एक फ्लैग की। जो तारा है वो जो एग्जैक्टली। स्टार थी, जो विजडम का सीन था, वो सारा मैश हो रहा है। तो जो काफी ठीक है। अरसे से चल रही है ना हमारे उसमें मुल्क में या काफी दुनिया में चल रही है, तो वो मैं दिखा रहा हूँ कि वायलेंस ने किस तरह से वो इफेक्ट कर दी हमारी सोसाइटी पे या मुल्क। ठीक है। हाँ ठीक है। ये भी ऐसे ही है। हाँ ये भी आपके फ्लावर का बुके की जी जी। तरह। इसमें इसमें ये है कि इसमें काफी सारे फ्लावर्स है जो कि गोल्डन फ्लावर्स है, और वाइट वो है उनके लीव्स है, और साथ में नीचे सारे डेंटिलियन एंजल्स है जिन्होंने डेंटिलियंस पकड़ी है। तो मैं दिखा रहा हूँ एक खूबसूरत सीन था। बेसिकली जो गोल्डन फ्लावर्स थे वो एक लव शो कर रहे थे, एक वैल्यू शो कर रहे थे, लेकिन जो ब्लड के ड्रॉप्स है वो सारा कुछ खत्म कर रहा है। हम्म। तो ये इस तरह ठीक है। ये भी ऐसे ही है आपका। इसमें मैं दिखा ये रहा जो हूँ आपका एक। बी के पैटर्न के साथ ये। जी जी। जी जी। इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि हनी बी है और वो मैश हो रहा है, जो कि नीचे फ्लावर्स है वो भी मैश हो रहा है, लेकिन जो हनी बी के इर्द गिर्द सारे जो ब्लैक डेंडिलियंस और ब्लैक एंजल्स है वो शोक बना रहे हैं। बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ कि खूबसूरती, चीजें खूबसूरत होती है, लाइफ खूबसूरत होती है, जब उसमें डार्कनेस आ जाती है या वायलेंस आ जाती है तो वो उसकी खूबसूरत छीन लेता है। यानी कि तो नेचर वो भी मोर्न कर रही है इसको देख के। हाँ हाँ। तो ये इस हम्म। तरह। ये भी ऐसे ही है। ये उसकी डिटेलिंग है। हाँ हाँ, ये बहुत ही जबरदस्त डिटेलिंग है फ्लावर। ये भी ऐसी आपकी हनी बी की काफी ऐसा भी है जिसमें कलेक्शन ऑफ हनी बी है जो कि आपकी हाँ। सोसाइटी को शो करता है। जो सोसाइटी को शो कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि बेसिकली हम एक गार्डन में ना हम बहुत सारे बीज रहते हैं। बेसिकली सोसाइटी को मैं हम्म। ऐसा गार्डन लेता हूँ और उसमें जो बीज रहते हैं और वो सारा कुछ उनकी इन्वायरमेंट। तो मैं कहता हूँ जब वायलेंस हो जाता है तो वो सारी गार्डन को वो खराब कर देते हैं, जिसमें वो सारे इफेक्ट हो हम्म। जाते हैं। बेसिकली उस गार्डन से मैं अपने मुल्क को लेता हूँ या दुनिया को लेता हूँ। बिल्कुल। बी लेकिन का जो कॉन्सेप्ट है, बी आप अपने आप को ही रिप्रेजेंट करते हैं और फिर बी के पैटर्न को जब आप ग्रुप में शो करते हैं तो आप अपनी सोसाइटी या अपने उसको हाँ शो करते हैं जी जी कम्युनिटी को। जी जी बेशक इसी तरह है। तो बिल्कुल। बेसिकली मैं दिखाता हूँ कि हम लोग, यानी पहले मैं अपने आप को रिपोजिशन करता था एज हनी बी। तो मैं कहता हूँ कि हम्म। मैं एक टीम वर्क में रहता हूँ, जो मेरे बाकी के दोस्त या फेलोज या इंसान है वो भी बीस की तरह है। वो भी हर बंदे का एक फायदा है। अल्लाह ने हर इंसान को एज एक आर्ट पीस बनाया हुआ है। देखो अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से इंसान को बनाया है। तो मैं दिखाता हूँ बिल्कुल। कि हाँ, मैं दिखाता हूँ कि हम सारे, हर एक का अपना फायदा है, सब लोगों में क्वालिटीज है। तो मैं उनको फिर एक टीम वर्क शो करता हूँ। बिल्कुल। रहीम, आपका अपने फादर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी आपने हनी बी और फ्लावर और जैस्मिन फ्लावर के साथ शूट किया है, उसके बारे में जी थोड़ा जी। आप बताते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा जी जी। तो क्या हुआ कि स्टार्ट पे मैंने, जब मेरा थीसिस था तो मैंने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई। मेरे बेसिकली मेरे टीचर्स भी मुझे कहते थे यू आर सो मच टैलेंटेड, यू शुड पेंट दैट फिगरेटिव वर्क। तो मैंने जब वो कर दी, फिगरेटिव पेंट किया, तो मुझे बिल्कुल उस तरह से एक सेटिस्फिकेशन दिल को नहीं होती वो मुझे नहीं मिली। मुझे मुझे लगा जो मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को या जो मैं फील करता हूँ मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि ठीक है। मैंने, फिर मैं एक दिन सोच रहा था, बेसिकली मेरे अनकॉन्शियस माइंड में था अनीबी और फ्लावर का एक रिलेशन है ना। अगर अनीबी, सिर्फ अनीबी दुनिया में और फ्लावर्स ना हो तो उसका कोई रोल नहीं है। तो इस ठीक है। अनीबी को, हाँ अनीबी के ऑफ एक्सपेक्टेशन सब कुछ फ्लावर के साथ है। तो जब मैंने वो करना, जब मेरे माइंड में आ गया अच्छा मेरा रिलेशन तो एक हनीबी और जैस्मिन फ्लावर जैसा है, एक फ्लावर जैसा है, जो कि मेरे होप एक्सपेक्टेशन सब कुछ मेरे फादर के साथ थे। वो मेरे लिए बचपन में एक रोल मॉडल, वो मुझसे चले गए तो मैंने क्या फील की। कुछ कुछ चीजें होती है कि खुदा की तरफ से होती है, अगर वो
खुदा की तरफ से चले जाते, जिनकी डेथ हो जाती है, मुझे लगता है फिर भी आपको इतनी दुख बिल्कुल। नहीं होती। अगर वो जिंदगी में चले जाते, आपसे जिंदा होके चले जाते, तो आप हर वक्त उनके बारे में सोचते हो। तो वो इस तरह थी कि उनकी सेकंड फैमिली थी। और फिर सोसाइटी का एक ऐसा प्रेशर आ जाता है आप पे कि आपके अगर पेरेंट्स आपको छोड़ जाते हैं, तो लोगों को यही लगना शुरू हो जाते है शायद आप अनलकी हो, तो फिर लोग भागना शुरू हो जाते हैं आपके अजीज रिश्तेदार। मुझे दुख इस बात की नहीं थी कि सिर्फ मेरे फादर चले गए, मेरे फादर के साथ साथ जो मेरे अपने मेरे यानी मेरे अम्मी के भाई वगैरह थे वो सब छोड़ गए, या अब्बू के भाई वगैरह थे सब छोड़ गए। यानी आप सिर्फ अकेले पे रह जाते हो अपनी फैमिली के साथ, जो आपके बहन भाई होती है या आपके मदर होती है। तो मुझे दुख उस बात की थी। लेकिन अल्लाह का करना ये था कि देखो मैं इस तरह से मैं सूफीज्म में आ गया कि जब आपको अल्लाह आपको जब अपने पास बुलाता है तो आपसे सब कुछ छीन लेता है एक दफा, जो दुनियावी चीजें। तो वो इस तरह थी कि सब छोड़ गए। तो तब मुझे एहसास हुआ कि देखो दुनिया की कैसी है ना, कि आपके पास जब सब खुशियां होती है तो सब खुशियां, जब आप खुश होते हो तो सब आ जाते हैं, जब आपकी कोई परेशानी या कुछ आ जाती है तो सब भाग जाते हैं, वही आपके अपने सारे बिल्कुल। बेगानों में चेंज हो जाते हैं। तो चलो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि देखो वो चीज शुरू में मैं बड़ा वो फील करता था कि मैं अनलकी सा हूँ और मुझसे सब कुछ छीन गया, और देखो अल्लाह मेरे साथ क्यों कर रहा है ये। तो मैं कहता था अगर अल्लाह मेरे सामने होता तो शायद हम दस्त गिरेबां होते, यानी मुझे इतनी शिकवा थी। लेकिन मेरी फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी अल्लाह के लिए कि देखो अल्लाह हर वक्त है, मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बेशक मैं उससे लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना मेरा यकीन बिल्कुल। स्ट्रांग था कि वो है, उसकी ओपरे बिल्कुल। की मुझे यकीन इतनी ज्यादा थी। तो फिर क्या बिल्कुल। हुआ कि जू मैं बढ़ता गया और मैं आर्ट की तरफ आ गया। आर्ट तो पहले से ही था मेरे अंदर, तो मैं बहुत ज्यादा ड्राइंग करता था। लेकिन जब जू ही बढ़ता गया और जब मैं एनसीए आया और जब मैंने अपनी थीसिस में पेंटिंग्स बनाई, मैंने वो दिखाए, वो शो की कि मेरा एक रिलेशन था मेरे फादर के साथ, जब वो चले गए तो मैं किस तरह फील करता था। मैं उसको तनाई में इस तरह से फील करता था जैसे कि गोया मुझे कोई ऊपर से गिरा रहा है, मैं सो रहा हूँ, मैं यानी अपनी प्रेजेंस भूल जाता था। लेकिन वो एक फादर के लिए था। फिर वही चीज कन्वर्ट हो गई अल्लाह के लिए कि जब मैं अली भी पेंट करना शुरू किया तो एक ऐसा पॉइंट आ गया तो मुझे लगा कि मैं टोटली डिस्कनेक्ट हो गया अपनी सराउंडिंग से। वो डिस्कनेक्टिविटी जब क्या थी मुझे समझ नहीं आया, मेरे अनकॉन्शियस माइंड में था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक सुकून सा मिल रहा है, एक सरूर सा मिल रहा है। तो मैंने दोबारा एनीबी पेंट करना शुरू किया। जब दोबारा पेंट करना शुरू किया तो मुझे लगा कि अच्छा इसकी जो फर है, जो उसकी सॉफ्टनेस है और उसकी जो रिपीटेशन है, बेसिकली मिनिएचर होता है इतने डिस्टेंस के साथ ना, बहुत ही करीब डिस्टेंस होती है। जब आप उसमें इतने मजबूत होकर पेंट करते हो तो जब मैं रिपीट करता था फर तो टोटली मैं डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो वो जो डिस्कनेक्शन थी वो इतनी खूबसूरत थी, जैसे कि मेरा रूह इतना हल्का हो रहा है और मेरा रूह आसमान की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे मंजिल का कोई पता नहीं, लेकिन वो इतना खूबसूरत है। मैं कहता मेरे अपने बस में होता तो मैं उसी दुनिया में रहता। वो एक नई दुनिया अल्लाह ने दी मुझे। देखो एक सफर था जब अल्लाह, मुझे लगता है कि सूफीज्म में यही है कि अल्लाह पहले आपसे कोई आपका इतना प्यार आपसे छीन लेता है ताकि पहले आपको किसी की मोहब्बत आपके दिल में डाल देता है, इतनी मोहब्बत डाल देता है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। जब उसको छीन लेता है आपसे तो आप अल्लाह की तरफ फिर बढ़ना शुरू हो जाते हो। वो एक प्रोसेस था एग्जैक्टली। मेरे लिए कि वो मुझसे जब चीजें छीन गई तो मैं अल्लाह की तरफ बढ़ा। और मेरा इतना बिलीफ था कि फिर वही अल्लाह थी। जब मैं कहता था जिसको मैं जिससे मैं शिकवा करता था, मैं कहता था मैं उससे दस्त गिरेबा हो जाऊं, अब उसको मैं उनको एक दोस्त की तरह देखता हूँ। मैंने दोस्ती कर ली उनसे। तो वो एक कितनी खूबसूरत सफर थी कि उस सफर में मुझे अल्लाह बिल्कुल। ने बेशक चीजें मुझसे चली गई, लेकिन जब अल्लाह मुझे मिला तो मुझे कितनी फेम मिली। और मैं कहता ये मेरी लक थी जो मुझसे चले गए, काफी चीजें चली गई। अगर वो चीजें ना जाती तो आज मैं यहाँ पे ना होता और मैं इस तरह का पेंट ना करता।
एग्जैक्टली भाई, हमें वही बात है कि जो वर्ल्डली चीजों के साथ हम कनेक्शन बनाते हैं तो खुदा को भूल जाते हैं, हम समझते हैं यही सब कुछ है। हाँ लेकिन फिर वो आपको दिखाता है कि अल्टीमेटली तो मैं ही हूँ। लेकिन वही बात है कि आपकी फिर वो जो वो पेन है, ये इमोशंस हैं, बाकी वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर आप स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और लोग हाँ कनेक्ट कर पाते हैं उस फीलिंग के साथ, इमोशनल हाँ कनेक्शन बना पाते हैं। और खुदा हाँ के साथ जो आप दोस्ती की बात करें, वो बिल्कुल ऐसे ही है। वो कनेक्शन आपका यही है कि हर एक का नहीं बनता, आपका बना उनके साथ, लम्या के साथ, क्योंकि आपका भरोसा हुआ या बाकी, इसीलिए हाँ जो है ना वो ज्यादा उस हाँ दुनिया के साथ आपने कनेक्ट किया, इसलिए आपकी बड़ी मेडिटेटिव क्वालिटी है। फिर आप जो वो कहते हो ना, वो जो कि आप भूल गए और बार बार रेपिटेशन होना, वो बिल्कुल मेडिटेटिव, ऐसे जैसे तस्बीह पढ़ते हैं ना आप, तो आप बार बार हाँ जिक्र करते हैं, जिक्र करना हाँ और फिर जुड़ना, हाँ। बिल्कुल ऐसे है। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं वो करता हूँ, जब फर पेंट करता हूँ, तो उसके साथ मैं प्रॉपर जिक्र करता हूँ। इसलिए जिक्र करता हूँ, मुझे था कि मैं ये वर्ल्ड भी अपने सुकून के लिए करता हूँ, कि देखो मैं अपने माइंड को एक पीस में लाना चाहता हूँ, एक नई दुनिया में चला जाता हूँ, तो क्यों ना उसके साथ जिक्र करूँ। जब मैंने जिक्र करना पेंट कर दी, तो वो इतनी इम्पैक्टिव पेंटिंग बनी। तो उसमें से एक उसके साथ अब्दुल रहमान अल अनास के पास मेरी पेंटिंग पड़ी है, जो मैंने एक पॉइंट से शुरू की, जैसे आप तवाफ कर रहे हो, फिर मैंने तवाफ करना शुरू की। वो 5 फीट पे इतनी सॉफ्ट पेंटिंग आई कि कोई हद ही नहीं। जब मैं 1 साल बाद वही पेंटिंग, जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे, तो मैंने देखी, मेरे बदन के सारे बाल खड़े हो गए कि देखो ये जिक्र की कितनी वो है। हाँ, तो एक बिल्कुल ऐसी है, मिसाल है। बिल्कुल हाँ, ऐसी है, तो फिर वही बिल्कुल चीज। ऐसी है। हाँ वही बात है कि आप जितना, हम ये बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि जो इमोशनली कनेक्ट करना किसी चीज के साथ दुनिया हाँ में, क्योंकि आप इमोशंस है ना, जो कि अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपकी पेंटिंग को देख के मैं भी उसको कनेक्ट कर पाऊंगी, एम्पैथी हाँ क्रिएट होगी मेरे अंदर। हाँ आप हाँ जितने इमोशन डालेंगे उतने, वरना अगर वो इमोशनल पीस नहीं है तो मैं भी बस उसे थोड़ी देर देखूंगी और निकल जाऊंगी। आपका हाँ ऐसा है कि वो बहुत मेस्मराइजिंग है, वो गूज बम्प्स देता है आपको, उसको देखते ही आपको जो है ना, वो जो आप फीलिंग कह रहे हो एग्जैक्टली ऐसे ही होती है, देखने वाले को भी ऐसे ही होता है। हाँ। फिर तो वो जो फिर आपकी, फिर जी जी, जी जी। आपकी फिर बल्कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर जो टेररिज्म वाली बात है, जो खास तौर पे बलूचिस्तान ने फील की है, या उनके साथ हुई खास कम्युनिटी के साथ मार्जिनलाइज हो गए, एक साइड पर ज्यादा लोगों के साथ उनको फेस करना पड़ा, वो वाली चीज भी आप कैरी ऑन करते हैं अपने काम के हाँ, अंदर, वो चीज भी बहुत ज्यादा है। वो मैं इस तरह से कैरी ऑन करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जब मेरे यानी हर आपके फैमिली का हर रुकन आपके लिए कितना खूबसूरत है। बिल्कुल। अभी तक उस फेज से नहीं निकल रहा। तो ये जो वायलेंस हाँ, है, जो वायलेंस के थ्रू लोगों की डेथ हो जाती है, चले जाते हैं अपने फैमिली से, तो उनकी फैमिली एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो सारी जिंदगी इस चीज को नहीं भूल सकते। तो मैं वो जो मैं फील बिल्कुल। करता हूँ उनके लिए, जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में फील की, तो फिर वो मैं दिखाता हूँ, वो वायलेंस में दिखाता हूँ। मैं वायलेंस के अगेंस्ट काम करता हूँ कि वायलेंस ना हो, हमारी कितनी खूबसूरत जिंदगी होती है, कितनी प्रीशियस सी लाइफ है, उसको यानी खत्म ना करे। देखो बिल्कुल। हर बंदे का एक टाइम लाइन होता है, और वो कितना खूबसूरत होता है अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। जब वो चला जाता है या उसको मार देते हैं, तो वो सारे इफेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ओवरऑल पूरी सोसाइटी इफेक्ट होती है उससे, ये नहीं हो सकता कि आपके इर्द गिर्द कुछ हो रहा है और आपको फील ही नहीं हो रहा, तो वो ये भी एक कनेक्टिविटी बनती है, बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैं यही कहता हूँ कि लोग कहते हैं अच्छा कि आप इस टॉपिक पे बात ना करें, जो मिसिंग पर्सन है, ये क्यों ना करें। वो इतने खूबसूरत लोग थे, जो मुझसे मेरे बिल्कुल। मेरे दोस्त थे, जो मेरे हमसाए थे या मेरे रिलेटिव्स थे, जो मिसिंग हो गए, उनको मैंने बड़े करीब से देखा। इतने खूबसूरत लोग हैं। एक आप पॉलिटिकल गेम के लिए उनको मिसिंग कर रहे हो या मार रहे हो। मैं नहीं कहता कि बेशक कोई बैरूनी भी एजेंसीज काम कर रही है या बिगाड़ रही है चीजें, लेकिन उसको कंट्रोल किया जाए। वहां के लोग बड़े खूबसूरत है। हर बंदा अपने, हर फैमिली का रुकन अपने फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। जब वो चला जाता है तो लाइफ उस तरह से फिर नहीं होती। और मुझे लगता है कि ये भी है ना कि कई दफा बलूचिस्तान कम्युनिटी देखें या सरहद की तरफ देखें या जो बॉर्डर्स पे थे, उनको स्केपगोट बना दिया गया ना, मतलब ये सारा कुछ हाँ उनके ऊपर डाल दिया गया, और बाकी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा उन कम्युनिटीज को बर्दाश्त करना पड़ा। मतलब हाँ, ये फिर ये भी एक बहुत ज्यादा जुल्म है, इनक्वालिटी है ये।
एक जुल्म है ना। देखो हमने, अगर मैं बात करूं, मैं हमेशा रियलिटी की बात करता हूं। हम बात करें अगर उसकी, देखो जब तालिबानाइजेशन बनी या टेररिज्म जब आया तो हम खुद लेके आए, पावर के साथ लेके आए, हमने डॉलर दी बिल्कुल और हमने हमने लोगों की जानें बेच दी। ऐसे ठीक ही है। है, पूरी तो जनरेशन खत्म कर दी, पूरी एक हाँ, जनरेशन गायब हो गई। गायब हो गई ना। तो हमने तालिबानाइजेशन खुद नहीं बनी, हमने बनाई है उसको, अमेरिका के हाँ, कहने पे हमने बनाई। जब अमेरिका का फायदा जो वो बेनिफिट से उसने ले ली, तो उसने सारा कुछ गंद यहीं पे छोड़ दिया, जो हम बिल्कुल अभी ऐसे तक ही है। भुगत रही। ये जो टेररिस्ट अटैक्स हो रही है या ये सारा कुछ हो रहा है, ये तो उन्हीं की वजह से हो रहा है। और दूसरी सब बात पावर अगर गेम है ना, सब बड़ी पावर बड़ी गेम, पावर्स आपस में पावर लेने के लिए हमें बीच में जो है वो बना हाँ, रही है ना ये अवाम इंस्टेंट। को साथ में। और दूसरी बात, अगर ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये सारा कुछ जो टेररिज्म, ये जो अटैक्स हो रही है, टारगेट किलिंग हो रहा है, ये सारा एक गेम के थ्रू हो रहा है। मैं कहता हूँ हम लोग अफ्रीका की तरह हम लोग भी कर्स हो गए, क्योंकि वहां पे इतना मिनरल्स है, एक तो ग्वादर सी पैक है, हाँ, तो इनकी काफी मुदाखलत है। फिर अंदरूनी भी जो मुफादात लेना चाह रहे हैं, तो दरमियान में हम अवाम पिस रहे हैं वहां पे। इस रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अब तो चीज है। फिर पूरे मैं, मुल्क के यही हाल है, बिल्कुल हाँ यही है। हाँ, और जब तो आप वेट करते हैं कि किसी और के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, तो वो चीज आप तक भी पहुंचती है अल्टीमेटली। ये तो तो नहीं हो सकता कि आप बच जाए। यही होती है, फिर सारे इफेक्ट हो जाते हैं ऐसे ही है, बिल्कुल वहां पे। ऐसे ही है, किसी ना किसी फॉर्म में निकल रहा है, ये तो ऐसे ही है। हाँ, फिर वहां पे अब कुछ माए जी, थी, या जो लोग गायब हो गए हैं, या जो जो लोग टारगेट किलिंग में मर गए हैं, बम ब्लास्ट में। ये जो हजारा फैमिलीज थी, बलोच फैमिली, या वहां पे जो पख्तून है, इवन तक कि जो पंजाबी बेचारे वहां पे पिस गए, ये जो क्योंकि सारे फिर लपेट में आ गए। तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो बेचारे अपने अजीज रिश्तेदारों के लिए जब रोते हैं ना, तो बंदे का ऐसा होता है कि आपका दिल फट जाता है उनकी आवाजें सुन बिल्कुल के। आप सही कह रहे हैं। हाँ आपकी जो खास तौर पे जो आपकी पेंटिंग्स के अंदर वो जो आपने हेलीकॉप्टर्स के थ्रू और बाकी जो दिखाया ना, जो टेररिज्म प्रॉपर नजर आता है, या जो नेचर की वीपिंग है या क्राइंग है, उसके लिए वो बहुत खूबसूरत है। वो मैं शेयर करती हूँ जो आपने यहाँ हमें दिखा। ये भी आपकी हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इसको हाँ, इंसिकल कर रहे हैं। बेसिकली मैं अ, बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ एक नेचर को कैसे वेपन्स खत्म कर रहा है, मशीनरी खत्म कर रहा है। हाँ, पुराने दौर में अगर एक, यानी किसी के साथ दुश्मनी होती, तो वो सिर्फ एक ही बंदा मर जाता जो उसका एनिमी था। या इतनी हम्म, जितनी भी जंग ये भी थी, तो अब एटमी पावर्स के थ्रू या वेपन्स के थ्रू कितने लोग मर जाते हैं, यानी हजारों की तादाद में। और वो जो मारने वाले, वो सिर्फ एक बटन के थ्रू कितने लोगों को मार देता है। उसमें वो नहीं होती, आप किस रिग्रेट्स उस तरह से नहीं आती, जिस तरह से अगर आप ऐसे किसी ही को, है। हाँ, पुराने दौर में अगर किसी को तलवार से मारते तो उसको एक आ जाती उसमें रिग्रेट कि किसी को मैंने अपने हाथों से मारा है। अब तो आपके पास मशीनरी। तो मैं दिखा रहा हूँ बेसिकली, जो मेरे लिए तो टेररिस्ट वही है जो सबसे ज्यादा वेपन्स बनाते हैं। फिर बिल्कुल पहले तो सही वो कह रहे हैं। वेपन्स बनाते थे, वेपन इंडस्ट्रीज बनाते हैं, फिर वेपन को बेचने के लिए ऑलरेडी वो एक जंग क्रिएट कर देते हैं जिसमें हजारों बिल्कुल लोग मर ऐसे ही, जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए ये जो टेक्नोलॉजी जो अलग की बनाई हुई है, जैसे बी की जो है, जिस तरह वो बी हनी कलेक्ट करती है और लोगों को फायदा देती है, और मतलब इसका स्टिंग भी होता है, लेकिन ये सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन में ऐसा करती है। प्रोटेक्शन के लेकिन लिए अगर हमेशा। हेलीकॉप्टर को देखें तो वो सिर्फ मारने के लिए है, वो कोई फायदा देने के हाँ लिए नहीं है। हाँ, वो सिर्फ जो आप देखिए, आपकी जहां पे भी हेलीकॉप्टर्स और इस तरह की चीजें, वेपन्स बहुत ज्यादा है वहां पे, फिर जंगे भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो फिर अपनी एक बेनिफिट्स के थ्रू वो कर जाती है, अपनी बेनिफिट्स निकालने के लिए वो जंगी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जैस्मिन वाले को भी आपने ऐसे ही दिखाया बीच में, जिसमें हेलीकॉप्टर्स करीब हैं, या बाकी ये भी आपकी जो हाँ पेंटिंग है, ये भी ब्लड और ब्लड से रिलेटेड ही है, और बाकी हाँ, बेसिकली मैं दिखाता हूँ कि एक लव को कैसे वेपन खत्म कर रहा है, या एक टेररिस्ट बिल्कुल अटैक्स, या टेररिज्म, या ये जो उसके दरमियान में फ्लावर है, और उससे एक ब्लड की लाइन निकल रही है, जो कि फ्लावर उसके ऊपर है, और साथ में एंजल्स, उसमें उसके इर्द गिर्द एंजल्स है, और उसमें वर्ड लिखी है सारी, मैंने एक पैराग्राफ लिखी है जो टेररिज्म के अगेंस्ट है। तो मैं दिखाता हूँ कि ठीक है। अगर हाँ, हमारे यहाँ जो पावर मिलती है ना, एक एक पावरफुल
वो एक पावरफुल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसको पावर मिलती है, लाजमी नहीं कि हर जगह पे अच्छे लोग हो, अगर उसमें एक इवलिश बंदा आ जाता है तो वो अपना इवल पावर यूज करता है सोसाइटी पे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अच्छा, जो वही बात है कि जी जी बताइए। यहाँ पे जो वेपन्स मैं दिखा रहा हूँ अपनी एक यहाँ पे जो एक जिनके पास वेपन्स है या जो पावर में है, वो अपनी जाहिर सी बात है, वो जब ऑर्डर देता है तो अपने ऑर्डर को वो ऑन करता है और उसके थ्रू वो लोगों को मारता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ अब वही बात है कि नेचर एंड कल्चर का भी जो डिफरेंस है, कल्चर के थ्रू जो हम इंपीरियलिज्म डाल देते हैं उसमें, या इस किस्म की चीजें जिसमें हम लोगों में मतलब टेररिज्म के थ्रू वाइप आउट करने की कोशिश करते हैं, नेचर को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, और उनको जो है, सॉरी, नॉट एम्पावर करने की कोशिश करते हैं बल्कि ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं कि हम उसके ऊपर जो है वो डोमिनेट करें और नेचर को खत्म कर दें। अब आपका वो जो एलिमेंट्स हैं फ्लावर के, बी के, वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिसको आप, ये जो मैन मेड चीजें हैं जो हम कल्चर क्रिएट करते हैं वेपन और डिस्ट्रक्शन के लिए क्रिएट करते हैं, जबकि जो नेचर है वो चाहती है कि फ्लरिश करें चीजें, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाती। नेचर डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं, ह्यूमन की जो साइकी जहाँ इन्वॉल्व है वहां आपको नजर आता है कि कल्चर के थ्रू वो किस तरह से डोमिनेट करते हैं और इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ खत्म करने की कोशिश करते हैं। सही बात है। इसी तरह है, फिर मैं यही चीजें दिखाता हूँ कि भाई जो एक नेचर है या एक खूबसूरती है उसको रखो। अगर बेसिकली आप अगर वेपन्स और इन चीजों पे ज्यादा, टेररिज्म इन चीजों पे जाते हो, एक टाइम पे सब कुछ खत्म हो जाता है। इवन तक कि इमोशनली भी वो लोग फिर उस तरह से नहीं रहते। वो नहीं होती सारे, जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, एक सोसाइटी मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, उनकी इमोशनल इतनी इफेक्ट हो जाए, वो फिर लाइफ को क्या एंजॉय करेंगे। बिल्कुल सही। अब अब ये वाली इसमें पेंटिंग आपकी बहुत खूबसूरत है, जिसमें बी का हाँ ये ब्लड आपको नजर आ रहा है हाँ जाता हुआ, और नीचे हाँ नेचर आपको क्राई करती हुई हाँ नजर आती है, बेसिकली मौन कर रही है। हाँ बेसिकली मैं इसमें एक एंजल दिखा रहा हूँ जिसकी ये ये बहुत हाँ खूबसूरत है, इसमें दिखा रहा हूँ जो एक ये एक जो है। एंजल है, और एंजल के हाथ पे एक डेंडिलियन बैठा हुआ है जो उससे कम्युनिकेट कर रहा है एक इंसेक्ट की सूरत में। तो वो उसको दुनियावी जो वायलेंस है वो बता रहे हैं, जो जो टारगेट के लिए। तो वो रोना शुरू कर दिए, जो पीस का एंजल है वो रो रही है इंसानों की जो हरकतों से और ये जो वायलेंस है इनसे वो रो रही है। और जो फ्लावर्स है वो ब्लैक की तरफ है, जो उसके इर्द गिर्द फ्लावर। बहुत, हाँ, ये बहुत हार्ट टचिंग है ये वाली आपकी, हाँ बहुत ही तो हार्ट फिर वो एक वार की, देखो हर जगह पे वार, मुझे कि वो समझ शिकायत कर रहा है उसको कि हाँ दुनिया हाँ कर रही है। हाँ मुझे मुझे खुद समझ नहीं आती, इतनी सी बहुत खूबसूरत है। इतनी छोटी जिंदगी, इतनी खूबसूरत जिंदगी है, इसको इसको हम्म, कैसे वार में बदल देते और सिर्फ अपने बेनिफिट्स लेने के लिए। बेशक अगर एक मुल्क है, यानी जो जो कंट्रीज जंगे लड़ती है वो अपनी बेनिफिट को क्यों बर्बादते हैं, क्यों, यानी ये जंगे क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आती। यानी जिंदगी बहुत छोटी है, बड़ी सही बात है खूबसूरत है। कि अब सिर्फ वो लालच है ना, हाँ लालच है कि सब कुछ हमें मिल जाए, हम हाँ अकोमोलेट कर लें। जैसे आप बलूचिस्तान की बात, आपने लास्ट टाइम जब हमारी डिस्कशन हो रही थी लास्ट क्लास से, तो आपने बात की थी कि वहाँ इतना कुछ है कि आप उसे नेचर में जो एग्जिस्ट करती है आप उसे एक्सप्लॉइट नहीं करते, आप उसे जितना जरूरत होती है उतना यूज करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि उस पे, उन रिसोर्सेज पे कब्जा कर लें। हाँ इसलिए भी तो ये हो रहा है ना कि आपकी उन चीजों को छीन लिया जाए, उस सोसाइटी को मार दिया जाए, उससे छीन ले रिसोर्सेज यही है जो ना, उनसे बिलोंग करती हैं। ये भी यही तो है। है ना, हाँ मिनरल्स हैं। आपने देखी द गोल्ड ऑफ द रिंग जो मूवी थी, उसमें माय प्रेशियस वो जो बताता है, यहाँ पे वही वाली सीन है, जो ग्रीडीनेस है। ये मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर हम वो मिनरल्स निकाले जो अपने कंट्रीज के या बेनिफिट्स यूज करें, सारे लोग खुशहाल हो। लेकिन पता नहीं क्या क्या मसले हैं। बिल्कुल हाँ जो ग्रीडीनेस है वो छोड़ती नहीं है ऐसी चीजों को, वो फिर कहती है कि सिर्फ मेरा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। आपकी रहीम, इनको थोड़ा इसके बारे में भी आप बता सकते हैं जो आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मिनिएचर
पेंटिंग या इस किस्म की चीजें इनको नहीं पता होती, लेकिन आप जो उसके लिए टूल यूज करते हैं या जिस तरह बनाते हैं और किस तरह से रेंडरिंग होती है, इसके बारे में थोड़ा इनको बताएं तो इनको कुछ अंदाजा होगा कि इसमें कितना मतलब ये कितनी लेबोरियस जॉब है और कितना टाइम लेती है ये। अच्छा, तो बेसिकली जो मिनिएचर पेंटिंग है वो गॉश और मसली, ठीक है, उसकी सारी जो जितनी भी उसकी वो आप मटेरियल यूज करते हो, ज्यादातर आप विदाउट ऑफ केमिकल यूज करते हो। पहले पुराने जमाने में तो वो सारे एमरेड और इस तरह की कीमती पत्थर वो पीसते थे और उनसे कलर बना के फिर उनको पेंट करते थे। तो आजकल बेसिकली जाहिर सी बात है, हमारे कीमती पत्थरों को ग्राइंड करके फिर हम कलर बनाए, तो हम विंसन एंड न्यूटन के कलर्स लेते हैं, तो फिर हम उनमें सफेदा जो जिसको हम सफेदा कहते हैं वो जिंक पाउडर होती है, उसका सारा केमिकल निकालते हैं और फिर उसमें डाल के उसको ओपेक बनाते हैं। और वो ये इतना मुश्किल प्रोसेस होता है जब आप पेंट करते हो, तो बेसिकली जो वॉश देते हो वो वॉश कहते हैं कि आप अपनी सांस को बंद करके आप वॉश दे, अगर आप थोड़ा सा ब्रीथ भी करते हैं तो वो हिल जाए तो वहां से वो खराब हो जाता है। तो इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि मैंने ऑयल पेंटिंग की है, मैंने चारकोल की है, मैंने प्रिंट्स जितना भी यानी टेक्निक है मैंने यूज किए, सारे इसके सामने इतने आसान है, उनमें गलती की गुंजाइश है। लेकिन जो मिनिएचर है इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आपसे कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। जो आप स्क्विरल ब्रश यूज करते हैं, जो इसमें आपने बहुत थिन लाइंस लगाई हुई है जैसे इसमें है या जो भी है, जिस तरह ये देखे ना इतनी फाइन लाइंस लेना, ये भी तो हाँ ब्रशेस के वो है ना हाँ, जो ये कि हम स्क्वेयर की दुम से एक ब्रश बनाते हैं जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही माइनर से छोटा सा होता है, तो उस पे कलर लगा के हम बार बार रिपीट करते हैं तो उससे ये डिटेल आ जाती है। और वो एंड में ब्रश होती है, वो अपने अंदर इतनी पानी ऑब्जर्व कर लेता है और अब उसी मुताबिक वो पानी को छोड़ देता है, तो उससे ये डिटेल आ जाती है। बहुत ही छोटा सा ब्रश होता है और ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि इसमें यानी एक पेंटिंग में महीनों के महीने लग जाते हैं। बिल्कुल। आपने तो सर्फेसेस भी बहुत बड़ी यूज किए हैं, ह्यूज सर्फेसेस पे काम किया हुआ है, दैट इज अमेजिंग। के मतलब बिनीत तो वैसे ही इतना छोटा सा इतना मुश्किल होता है, इतने बड़ी बड़ी ह्यूज सर्फेसेस इस्तेमाल किए हैं। हाँ, मुझे बेसिकली जो मिनिएचर इतनी सी अगर पेंटिंग होती है कोई 7 इंच की या वो 10 इंच की होती है, उसको वॉश देना इतना मुश्किल होता है कि आप अपनी सांस बंद करके और उसको वॉश देते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह पे इतना यकीन था कि अल्लाह ने मेरी इतनी मदद की कि जब ये पेंटिंग बनती है तो मुझे नहीं लगता कि मैंने खुद बनाई है। जब वो मेरे सामने आ जाती है यकीन नहीं आता, उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है अल्लाह की तरफ से कि वो शायद वो मुझे कोई सपोर्ट है अल्लाह की तरफ से तो तब वो बनती है। अगर मेरे अपने रहीम रहीम आप इसे रखते कैसे हैं? मतलब वैसे तो आप गोद में रख लें छोटी वाली को, ये इतनी बड़ी वाली को आप कहाँ रख के पेंट करते हैं? कैसे पेंट करते हैं? नीचे रख के, सीधा सामने रख के, क्या करते हैं? ये मैं बड़ा बोर्ड लगा के कोई 7-8 फीट का, तो उस पे लगा के तो फिर तब पेंट करता हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब लाइंग पोजीशन में नहीं यूज, स्टैंडिंग पोजीशन में आप इसको रखते हैं? इस तरह से रखता हूँ। फिर मैं वसली को ठीक है। निकाल के ना जिस तरह से मैं इजी होता हूँ उसी तरह निकाल के उसको फिर लगा के फिर काम करना शुरू कर देता हूँ। और वसली के लिए जो आप 4 पेजेस को यूं जोड़ते हैं, तो इतनी बड़ी सर्फेसेस के लिए आप कैसे कितनी बड़ी शीट्स लेते हैं, क्या करते हैं उसका? बेसिकली इसका एक पूरा रोल मिल जाता है 32 फीट का कुछ इस तरह से, तो फिर हम अच्छा, उसको कट करके उसी को फिर बसली की तरह बना देते हैं। बस की तरह बनाते हैं। वही बात है ना कि मतलब इतनी ह्यूज स्केल पे आम पेंटिंग भी हो तो मुश्किल होती है, और अगर मिनिएचर है जिसकी एक लाइन आप लगा रहे हैं, फिर उसको डेवलप करते हुए फिर निकलती है उसकी शक्ल, एक स्ट्रोक में तो निकलती भी नहीं है। मतलब इट्स क्वाइट अ लेबोरियस जॉब ना, और बड़ा मुश्किल है इसके लिए, बड़ा बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम मेडिटेशन के लिए एतकाफ में बैठ जाए। मुझे बड़ा मजा आता है जब आपके लिए काम चैलेंजिंग हो। अब देखिए मैं हमेशा अपने पेंटिंग्स के बारे में कहता हूँ कि मैं दोबारा इसको खुद नहीं बना सकता। मेरी जो एक कंपोजिशन है सारा कुछ तैयार बना हुआ है, उसको दोबारा शायद मैं 10 दफा सोचता हूँ कि उसको कॉपी करूँ, तो कोई और बंदा अगर उसको कॉपी करे तो कैसे करेगा, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। हाँ, नहीं बहुत डिटेल्ड है,
हाँ, तो बहुत डिटेल। ये उसकी खूबसूरती है बेसिकली कि यूनिक सा पीस आपके पास आ जाता है। आप उसमें इतना काम करते हो, इतना काम करते हो, इतनी लगन से करते हो कि दोबारा जब आप सोचो आप उस मूड में नहीं आ सकते हो। बिल्कुल ऐसे तो ही है। और मेरी जो बैकग्राउंड है वो हमेशा ग्रेडियंट टोन में होती है। पहले मैं वाश देता हूँ, फिर उसको टपाई करता हूँ। टपाई मीन आप छोटे से ब्रश से ना आप उसको मर्ज करना शुरू कर देते हो। हाँ। और ये इतना मुश्किल प्रोसेस होता है कि अगर आपका ब्रश गीला हो, बहुत ज्यादा गीला हो, तो वो नीचे वाले सरफेस को उठा देता है, तो वो एक स्पॉट बिल्कुल बन जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले मैं बैकग्राउंड पे काम करता हूँ, हाँ फिर मैं अपने एलिमेंट्स डाल देता हूँ और फिर उसको हाँ। पर्दात करता हूँ। जो उसकी रेंडरिंग होती है उसको पर्दात बोलते हैं। वो एक छोटे छोटे डॉट से करते हैं, इतने छोटे डॉट होते हैं कि वो अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो आपको नजर आना शुरू हो जाती है। वरना एक वो पाउडर की तरह होती है कि किसी ने पाउडर की तरह, अगर आपको लगता है कि आप उसको फूंक मार देंगे तो वो सारी बिखर जाएगी। तो वो इस तरह हाँ। से होती है। आपने गोल्ड लीफ भी और बाकी इस तरह की चीजें भी यूज की हुई है ना इसमें, डिफरेंट उसमें, अभी यहाँ पे तो नहीं है लेकिन हाँ हाँ। किसी पेंटिंग में है। यहाँ नहीं, इसमें किसी एक में था जहाँ पे आपने गोल्ड भी यूज किया हुआ था। इसमें तो इसमें नहीं, भी यहाँ पे मैंने शेयर किया है या नहीं, लेकिन इससे पहले बहरहाल जो वाली, आप डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते हैं। जी जी, इसमें वो जो पहले वाला था ब्लैक, उसमें मैंने सिल्वर यूज की है और एक में मैंने गोल्ड की है। तो मैं डिफरेंट अच्छा। वो करता हूँ। बेसिकली सिल्वर मैं क्यों यूज करता हूँ? सिल्वर मैं यूज करता हूँ अपनी जो वहाँ की जो मिनरल्स, वहाँ पे गोल्ड्स और सिल्वर्स और मिनरल्स इतने ज्यादा है और वो हमारे लिए कर्ज बन गई है। यही बात है। हाँ, तो एग्जैक्टली ऐसे ही है। लोग उसको यानी छीनने के लिए हमें उस तरह से उनके लिए उनसे उस तरह से बेनिफिट्स नहीं मिल रहा कि हम अपने लिए निकाल दें। लेकिन दुनिया जहां की नजरें उन पे है तो हमें मार रही है बेसिकली। अगर वहां पे मिनरल्स ना होती तो हमारा सोसाइटी उतना नहीं मरता, इतनी टारगेटेड किलिंग और टेररिज्म का शिकार ना होता। ऐसे ही है। कुछ हाँ आपकी इंस्टॉलेशंस भी हैं जो आपने यहाँ की है, जो कि मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, जो अपने बुक्स, और कुछ आपने जिक्र किया हुआ है कहीं अपने इंटरव्यू में भी कि जो आपकी बुक्स थी उसमें बुलेट के निशान थे, कोई मतलब वहां पे अगर कोई हुई टेररिज्म तो उसमें आपकी अपनी बुक्स या कुछ चीजें वो भी इफेक्ट हुई जिसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, जैसे ये आपने दिखाया हुआ है, हाँ ब्लड है नीचे और इसमें से ब्लड ड्रिप कर रहा था आपकी इंस्टॉलेशन से, जो मुझे याद है। हाँ। तो ये बेसिकली क्या प्लीज। ये बुक्स थी, इनके ऊपर पेंटिंग्स थी। तो मैं वही दिखा रहा हूँ कि एक में तो जो एक में सुइयां भी लगी थी। कुछ ऐसी टॉपिक्स है कि आप उन पे यानी आपको लगता है द रोज मूवी जिसमें वो नहीं कहता, उससे मैंने इंस्पिरेशन ली द रोज मूवी से कि वो कुछ बुक्स थी वो सिर्फ वहां के जो पॉप है वही पढ़ सकते थे। अगर कोई दूसरा हम्म। बंदा पढ़ता तो वो मर जाता। उसके पीछे अच्छा। रीजन क्या थी कि यानी वो सब लोगों के लिए नहीं था। तो यहाँ पे जो बुक्स है, मैं कहता हूँ इसमें एक ऐसी टॉपिक है जो जिसको हम बयान नहीं कर सकते। अगर हम उस टॉपिक को बयान करें तो हो सकता है कि हम खुद रिस्क में आ जाए और वो मर जाए। हम्म। जो तो इसमें कुछ टेररिज्म की बातें हो रही थी, कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो कि एक पावर वहां पे अपना पावर दिखा रही है, अपना इविलिश पावर दिखा रही है, जिसको अगर हम वाज़ेह तौर पे बयान करें शायद हम रिस्क में आ जाए। दूसरी बात मैं बता रहा था कि ज्यादातर आपकी जो तालीमी अदारे वो इफेक्ट हो रहे हैं। आप देखिए एग्जैक्टली। जहाँ पे कॉलेज है उस पे अटैक कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे हो या ये पुराने दौर से आ रहा है कि आपके जो लाइब्रेरीज थे वो जलाते थे या आपके जो तालीमी अदारे थे ताकि आप एक वहां से वीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही कह रहे हैं। विमेन यूनिवर्सिटी और जो विमेन के जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत टारगेट किए गए, उनको भी यही है ना वल्नरेबल बहादुर समझा खान, गया। हाँ यही है ना जो बहादुर खान यूनिवर्सिटी में अटैक हो गया। और रिसेंटली जब ये मेरा शो था तो काबुल यूनिवर्सिटी में अटैक हो गया था। तो इस तरह की चीजें होती रहती, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों तालीमी इदारों पे अटैक किए जाते हैं और जो मासूम तलबा या स्टूडेंट्स है उनको मारे जाते हैं। असल में वहां वहीं से तो सोच स्ट्रेंथन होती है ना। और अगर आप सोचते हैं या थिंकिंग बीइंग है, यही तो उन्हें पसंद नहीं है, वो चाहते नहीं ना कि आप ग्रो करें, ग्रोथ वहीं यही से तो है। यही है ना। यूनिवर्सिटी और स्कूल ही तो असल जगह, इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप बात करते हैं।
और चीजों को क्रिटिकली देखने की कोशिश करते हैं, वहीं से तो दिमाग प्रिपेयर किए जाते हैं ना खास तरीके से, वो नहीं उनसे बर्दाश्त होता कि जहन नहीं। टैल्बनाइजेशन क्या थी, ब्रेन वॉशिंग करना और बच्चों को उल्टे कामों पर लगा देना, और उसके बाद वो पूरी जनरेशन गई हमारी, वो तो किसी काबिल नहीं हो सकी ना, वो टेररिज्म के अलावा तो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं ना, उनकी सोच जनरेशन कुछ नहीं कर सकती, बंद हो गई। वही तक के वेपन्स हो और क्लाशंस हो और जंगे हो, क्योंकि उनको बनाया गया उस तरह से। हाँ बिल्कुल। और वुमेन को अगर आप खत्म करते हैं, एजुकेशन खत्म करते हैं, तो माँ की गोद से ही तो बच्चा आगे चलता है, जहां से आप पूरी नेशन बनाते हैं। आप उसको ही खत्म कर रहे हैं, आप उसको डरा रहे हैं, आप उसको बंद कर रहे हैं, उसको एक्सपोज नहीं होने दे रहे, एक्सपोजर नहीं लेने दे रहे, तो जाहिर है कि आप उसे खौफजदा करके तो आप एक नेशन को तबाह करें। वहीं से माँ की गोद से तो हर बच्चा निकलना है ना। सही बात है, यही तो बात है ना कि नेशन को तबाह कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट से वहां पे वो बम ब्लास्ट और टारगेट किलिंग, ताकि लोग खौफजदा और अपने बच्चियों को ना छोड़े या अपने बच्चों को, तो ये चीजें हो रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी पेंटिंग सारी इन चीजों पे, जो नेगेटिविटी है उसको कैसे खत्म किया जाए हमारे मुल्क से। मैं तो हर वक्त इसी सोच में होता हूँ कि बस ये वायलेंस कैसे खत्म हो और एक कैसा पीसफुल लाइफ आ जाए। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो इतनी ना कुछ भी नहीं था, किसी चीज का, टेररिज्म का तो खौफ था ही नहीं। हम रात के 2-2, 3-3 बजे तक जाते थे, किसी चीज का, ना चोर चक्कों का, ना टारगेट किलिंग, ना किसी ऐसी चीज की कोई खौफ नहीं थी। नहीं लेकिन था। हमारे तो बच्चे अब बाहर ही नहीं जा सकते, हमने तो बाहर बहुत खेला हुआ है, ये छोटे बच्चे अब इनको तो अब बाहर भेज ही नहीं सकते, वो बेचारे अंदर बंद हो गए हैं। तो यही मजीद कोविड ने बंद कर दिया है। ये बेचारी यंग जनरेशन के साथ भी यही हो रहा है। सही बात है। हम तो जब तक शाम की अजान होती थी हम बाहर खेलते थे, यानी फुटबॉल खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, ये वो कजन्स के साथ। तो शाम होती थी तो घर आ जाते थे, कोई डर नहीं था, जहाँ पे भी निकलते तो कोई खौफ नहीं था। अब देखिए, अब शाम की अजान हो जाती है या 10 बजे तक, वहां बलूचिस्तान में आप 10 बजे के बाहर आप खौफजदा हो कि कुछ भी हो सकता है, तो आप बाहर नहीं जा सकते। ये कब से टेररिज्म शुरू हुआ था? 2000 से शुरू हुआ है एक किस्म का बलूचिस्तान में, ये 2001 के बाद शुरू हुआ है? मुझे लगता है कि ये 2000 से ही शुरू हो गया था कि जब जब मुशर्रफ का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हुआ है 2000। हाँ, तो उसके बाद फिर चीजें चेंज होना शुरू हो गई और टेररिज्म और ये सारा कुछ फिर वहां पे फिर बहुत ज्यादा हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप बिलोंग करते हो उस एरिया से और आपने फर्स्ट हैंड देखा हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो टाइम भी देखा हुआ है जो उससे पहले का है, टेररिज्म, प्री टेररिज्म टाइम भी देखा है, पोस्ट टेररिज्म टाइम भी देखा है। और जिस तरीके से आप एक लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं, आर्ट को कैथारसिस के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी पर्सनल कैथारसिस के लिए भी यूज कर रहे हैं और सोसाइटी की ओवरऑल कैथारसिस के लिए भी यूज कर रहे हैं, ये एक बहुत पावरफुल मीडियम है जो आर्ट है, आर्ट एंड डिजाइन, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। आपकी बात आपको सारा बयान करने की जरूरत ही नहीं रहती, आपकी तो पेंटिंग देख के पता चल जाता है कि वो क्या कह रही है। तो मतलब ये कि आप इतना पावरफुल मीडियम है ये, आप क्या समझते हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगा जब फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे और आप मुझसे जब बातें कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लगता है कि किसी बंदे को अगर, यानी आपको एकदम से समझ आ गई थी मेरी चीजें और सारा कुछ, आप फिर जो मैंने पेंट की थी आप वही बयान कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आपको याद है तो मैंने दोबारा कांटेक्ट किया था कि आपने कितनी जबरदस्त तरीके से आपने उनको डिपेक्ट की और कितनी जबरदस्त तरीके से आपने दोबारा आपने पेंट की। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि आप देखो एक एजुकेटेड एक आर्टिस्ट आपको ही समझ सकता है ना कि आप क्या पेंट करती है। तो मुझे जब कोई मेरी पेंटिंग्स को समझता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, वो आप कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल, वो एक लैंग्वेज है ना खास, बिल्कुल एक डिफरेंट ही लैंग्वेज है जो कि आप समझते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहली दफा जब आपका काम देखा था, मैंने तो ऑनलाइन देखा था और मुझे उधर ही मतलब यही मैंने बीज वाले देखे थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बल्कि आपने तो जैसे बलूचिस्तान में आपने बीज का किया है, हमारे एक और फ्रेंड हैं जो कि सरहद से, उन्होंने कई दफा एलिफेंट को और इस किस्म के एनिमल्स को जो यूज किया, वो बहुत खूबसूरत है। वो भी इसी तरह, मतलब वो बहुत ही एलिगेंट किस्म का वो एनिमल है, और जिस तरह वो रहता है और उनको टेररिज्म कैसे इफेक्ट कर रहा है और बाकी और नेचर पे कैसे इफेक्ट करता है, वो आप लोग बहुत क्लोजली देखते हैं, वो बहुत खूबसूरत चीज है।
हाँ कि हाँ। बहुत क्लोजली आप वॉच करते हैं कि क्या हो रहा है। बेसिकली एक आर्टिस्ट का और एक जो थिंकर है उसका काम यही है ना कि वो नेचर को कैसे मेरे हमेशा माइंड में यही होता है। तो देखो अल्लाह की तरफ से मैं यानी मैं अभी अपने आप को इतना लकी समझता हूँ कि मैं हमेशा पीस की बात करता हूँ, मैं लोगों की बात करता हूँ, मैं सोसाइटी की बात करता हूँ। मैं हाँ, ऐसा मैं अपने काम को एक तबलीग जो नहीं होती कि आप वो करते लोगों एक प्रीच एक करना लोगों को। प्रीच करना, एक पीस का प्रीच करना, इस तरह से मैं बिल्कुल, देखता हूँ। हाँ, बिल्कुल। कि अगर मेरी वजह से हाँ, थोड़ी सी भी लोगों में एहसास आ जाए और वो कम्युनिटी या वो सोसाइटी ठीक होना शुरू हो, तो ये मेरे लिए लक की बात है। रहीम, सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपने उसको इतना क्लोजली देखा जो आपको पर्सनली भी इफेक्ट करता है, फिर भी आप अपनी पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं और लोगों को पीस का मैसेज दे रहे हैं। जबकि लोग जब इसमें से गुजरते हैं तो फिर वो कहते हैं जब हमारे साथ पीस नहीं तो दुनिया में भी पीस ना हो। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उसको उसके जरिए अपना कैथारसिस भी किया और फिर लोगों को भी वही प्रीच कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो लाइफ में, आपने इस हाँ, तरीके से आगे कैसे चलना है इसमें। और मतलब ये पाकिस्तान को भी इफेक्ट करेगा, ये पूरी दुनिया को भी इफेक्ट करेगा। पूरी दुनिया ये को। कितनी हाँ पॉजिटिव अप्रोच है। बिल्कुल हाँ, पॉजिटिव अप्रोच है, पीस कितनी बहुत ही अच्छी अप्रोच। लाइफ लाइफ बहुत खूबसूरत है। मैं हमेशा हाँ, सोचता बिल्कुल हूँ सही कह रहे हैं। जब मैं उठता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, हमें सब कुछ बिल्कुल, खूबसूरत मिला है। तो क्यों ना लाइफ बिल्कुल, को खूबसूरती के साथ गुजारे, पीस के साथ। जब लाइफ में बिल्कुल पीस सही। हो और ये खूबसूरत से आपकी जो नेचर है ये इतनी खूबसूरत है कि आप जब रोजाना आप उठते हो तो आप शुक्र अदा करते हो अल्लाह का। तो हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ऐसे इसमें ही है, बिल्कुल ऐसे। बच्चों से पूछते हैं, बेटा आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है सर से, आइडिया वाइज करना चाहे, टेक्निक वाइज करना चाहे, कुछ और चीज पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन करना चाहता है? कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? जी जी, सारा पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड सर। सर मेरा ये सवाल था कि सिंस यू वर्किंग इन मिनिएचर आर्ट, जो हमने काम देखा काफ़ी इम्प्रेसिव था और एक बहुत डिफरेंट सी टेक्निक थी। हमने पहले इसके बारे में ऐसा इस तरह से सुना नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर कैसे डेवलप हुआ? लाइक लाइक आपने कहा कि आपने ऑयल पेंट्स में भी काम किया था और बहुत सारी चीज़ों में काम किया था। बट ये एक इस तरह की चीज़ है जो हर कोई शायद अकम्प्लिश नहीं कर सकता। बट आपने एक इस तरह की डायरेक्शन के लिए ऑप्ट किया। थैंक यू सो मच सारा गाजी, आपने इतना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है। वाकई में ये मेरे बल्कि आपने पूछा तो मैं बता दूंगा। ये इस तरह से था कि मैंने ऑयल पेंटिंग में काम किया या बाकी उसमें जितने भी मटेरियल्स में काम किया उसमें आप ऑयल पेंटिंग को उसमें गलती की एक गुंजाइश है। दूसरी बात, आप डिटेल में काम करते हो, इतना डिटेल में काम नहीं करते हो जितना मिनिएचर में। एक तो मिनिएचर का एक तो वो जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, वो इतना खूबसूरत है कि आप जो पुराने आर्टिस्ट थे वो प्रॉपर वजू करके वो इसको एज इबादत लेते थे और बैठ के मैं उसी तरह बैठता हूँ जो पुराने आर्टिस्ट बैठते थे। आप वजू बावजू होके और बैठ के एज इबादत इसको करो। तो ये क्या होता है कि एक तो उसकी सरफेस बहुत करीब होती है आपके साथ। दूसरी बात मेडिटेशन की होती है, उसमें इतनी आप डिटेल डालते हो कि आप ना चाहते हुए भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी सराउंडिंग से। तो आप उसकी डिटेल में इतने गुम हो जाते हो, इतने गुम हो जाते हो कि आपको मजा आना शुरू होता है। तो बेसिकली मेरा अपना इसमें पैशन था और मुझे मजा आता था इस डिटेल में काम करना। तो इसलिए मैं मिनिएचर में आया। ये बल्कि बैठते भी डिफरेंट तरीके से हैं। जो मिनिएचर पेंटर्स होते हैं, ये तो पीछे नीचे हाँ कालीन बिछा के, पीछे गांव तकिए हाँ लगा के, खास लाइट में नीचे बिल्कुल ऐसे टांगे रख के बैठते हैं ये लोग। ऐसे हाँ टेबल कुर्सी के ऊपर या उसके ऊपर काम नहीं करते, नीचे बैठ हाँ के बिल्कुल ऐसे मेडिटेटिव पोज, जैसे योगा के पोजेज हैं या बाकी हाँ जो उसमें बैठते हैं ये हाँ लोग। हाँ हाँ, वो बड़ा वो बिल्कुल इस तरह से जैसे कि वो मेडिटेशन पोज में जैसे नहीं बैठते आप, वो योगा जैसे कि योगा पोज में बैठ के और आप फिर काम करना शुरू कर देते हो और बिल्कुल, फिर एक प्रॉपर लाइट के साथ काम करते हो ताकि आप उसकी ज्यादा से जितनी आपकी आंख देख सकती है डिटेल, आप उतनी डिटेल निकाल।
हाँ, क्योंकि इतना बारीक काम है कि अगर लाइटिंग ठीक नहीं है तो आपको बनानी पड़ती है खास लाइट इसकी, हाँ जिसमें आपको नजर आता है। बिल्कुल फिर ऐसे ही है। एक छोटे छोटे डॉट से वो बिल्ट होती है, उसकी लाइट एंड डार्क निकालते हो, जो कि बहुत खूबसूरत प्रोसेस है। बहुत खूबसूरत काम है। बिल्कुल। और कोई पूछना चाहता है कोई क्वेश्चन? मैं मेरा अगर इस्लामाबाद आना हो कभी, आई जी लव जी। टू गिव अ वर्कशॉप फॉर अ 1 वीक, अगर जब मेरा 1 वीक के लिए हो तो, ताकि इनको हाँ नेचर का पता चल जाए किस तरह बिल्कुल, से, ऐसी या कोई जैसे चीज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कुछ कुछ भी हो सकता हाँ, है। कुछ अरेंज कर सकते हैं ऐसा। हाँ जो कि थोड़ा बहुत सा भी बीच में हो तो वाकई अगर 1 वीक भी हो तो बहुत मजे की, ये देख सकते हैं कि वसली कैसे बनती है। इनको पता होना हाँ चाहिए कि हमारी यहाँ की जो क्योंकि फाइन आर्ट्स वाले या बाकी वो करते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं कंप्यूटर आर्ट्स, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइन आर्ट्स है, मुझे पता है, एनसीए की भी हिस्ट्री पता है। इन लोगों ने वो नहीं देखा हुआ कि कैसे मिनिएचर में, शायद इन्होंने पता नहीं अब वहां देखा कि नहीं, लेकिन जो टेक्निक है, क्योंकि मुझे लगता है रहीम ऐसे भी है कि जब आप इवन कि जब आप बाकी शुरू करते हैं ना काम, अगर हाँ सब 3D में चले जाते हैं, बाकी वो भी ऐसे ही हो जाता है, वो इतना डिटेल में जाते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन भी करें या जो भी, हाँ उसको अगर आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल आप उसे इबादत की तरह समझ के करते हैं, अपने हाँ काम की रिस्पेक्ट करना, वो जो ट्रेडिशनली जो हम काम यहाँ करते थे उस तरह से कंटिन्यू, वो चीज खत्म हो गई है ना। काम को लोग इबादत नहीं समझते, अब काम को सर से उतारने वाली चीज समझते हैं। हाँ सही तो वो बात एक मेरे ख्याल में ये एक इंस्पिरेशन है मिनिएचर की बहुत ज्यादा, कि हाँ बड़ी मेडिटेटिव सी और बड़ी हाँ। और तरह की चीज है। और आपने सही बताया, देखो हर आर्टिस्ट का अपना एक नेचर होता है। कुछ लोग ना फिजिकली जैसे स्कल्पचर बनाते हैं, उनकी अपनी मेडिटेशन होती है, या बिल्कुल। जो जो ऑयल पेंटिंग करते हैं। लेकिन मेरा अपना इंटरेस्ट और मेरा जो मेरी अपनी जो सर्टिफिकेशन है बेसिकली, वो मिनिएचर में, मिनिएचर है, बिल्कुल ऐसे ही। सेटिस्फाइड हो जाता हूँ तो उस बिल्कुल जिस ऐसे ही। तरह से। और मेरे अंदर बैठने का पैशन बहुत ज्यादा, मैं सुबह बैठता था और रात तक मेरे इसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए। मुझे याद है मैंने वो माइनर में रखा था, मुझसे बैठा नहीं जाता था इस तरीके से। मैंने तो छोड़ दिया था। मेरी कुछ थी, मतलब अगर मैं करती तो फिर अच्छा रहता, लेकिन ये कि मेरी हिम्मत नहीं थी इस तरह बैठने की। मतलब ये बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। यही है ना, और सच्ची बात। आर्टिस्ट का अपना एक पैशन है ना, कि वो किस पैशन तरह होता है। किस तरह से वो ज्यादा भाग दौड़ करके चीजें बनाए, उसको मजा आता है, या हाँ बैठ के या खड़े होके पेंट करे। मेरा बैठने एग्जैक्टली। वाला सीन था, और हाँ मेरा बैठने वाला सीन था, और मैं बस बैठने बैठ वाला। के और बस सारा टाइम पर इस तरह से। बिल्कुल, अल्लाह में हिम्मत दिए रखे, क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। ये मुझे पता है कि ये मेडिटेटिव पूरा कैसे होता है। कोई हाँ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई इससे रिलेटेड, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? क्योंकि आप आर्ट एंड डिजाइन में डिफरेंट आइडियाज को देखते हैं कैसे डेवलप होते हैं। अब आपने देखा कि सर ने किस तरह के मोटिव्स यूज किए हैं अपनी पर्सनल स्टोरी कहने के लिए, सोशल कमेंट करने के लिए। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्लास, या हम वाइंड अप करें इसको? जी बल्कि बल्कि मैं जी जरा अपनी वोकैबुलरी जो मैं जो इमेजरी यूज करता हूँ, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। जी जी बताइए। उसमें उसमें ये था कि जो मैं अनीबी से तो मैं अपने आप को रिपोजिशन करता था। जो जी जी। फ्लावर्स थे, जैस्मिन फ्लावर, बेसिकली उसकी जो वाइट प्योरिटी है, वो मैं अपने फादर के लव, या जो अपने क्लोज रिलेटिव्स है, जो बेसिकली सबसे ज्यादा तो आपके पेरेंट्स ही क्लोज होते हैं, या फिर आपके दोस्त, मुझे लगता है दोस्त और ये भी काफी क्लोज होते हैं। तो फिर बिल्कुल उनके जो लव के लिए, जो सबसे पहले जो मैं अपने फादर के लव के लिए जो मैंने यूज की जैस्मिन फ्लावर, उसकी जो प्योरिटी थी फ्लावर की, जो वाइट कलर थी, इसलिए मैंने जैस्मिन फ्लावर यूज किया, और मुझे उसकी स्मेल बहुत पसंद है। तो हाँ। हाँ ये मैं शेयर करती हूँ जिसमें आपने और भी है इसमें, ये डिफरेंट तो खैर था, जैस्मिन फ्लावर का जो आपने शो किया हुआ है, ये हाँ आपको शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी? जी जी ये आप हनी कोम का भी जो पीछे बैकग्राउंड में यूज करते हैं, जो इसका पूरा बैकग्राउंड में हनी कोम को आप शो करते हैं, जी जी जो आपकी अपनी सेटिंग है या एरिया है? हाँ, ये मैं एनीक्यूम ऐसे अपने जो अपनी प्रेवेंस है या अपना कंट्री है, इवन तक कि वर्ल्ड को मैं शो करता हूँ एक एनीक्यूम की तरह। हम सारे तो हमारा हम्म। हमारा जो वर्ल्ड है वो हमारा घर है, बेसिकली ओरिजिनली हमारा घर वो है। फिर उसमें जाके हम बिल्कुल छोटे छोटे सोसाइटीज और छोटे छोटे घर बनाते हैं अपने लिए।
बिल्कुल। जमीन इसमें देखिए जमीन जैस्मिन के फ्लावर्स और आपने ये हाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत यूज किया हुआ है, जो खास तौर पे ये जो डैंडेलियंस की ये जो हैं सीड्स जो फ्लोट कर रहे होते हैं, और फिर आपका ये अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट थी इसमें। मैंने कहा कि जो जैस्मिन फ्लावर्स है और जो जी अनीबी है, वो अनीबी आता है जैस्मिन फ्लावर के पास ताकि उनके ऊपर बैठ जाए, लेकिन फिर उसके ऊपर वो दोनों मैश हो रहे हैं, फ्लावर भी मैश हो रहे हैं और अनीबी मैश हो रहे हैं। फिर मैं दिखाता था, मेरी डिजायर थी कि दोबारा उसी उसी उसमें बैठ जाना, उसी अपने फादर के साथ बैठ के वो जो गपशप थी वो एक ख्वाब में बदल गई, एक ख्वाहिश में बदल गई। लेकिन जब ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उसके ऊपर मैंने ये जो ओवल बनाया और उसमें सारे फर्ज है, वो जब चीजें मुझे नहीं मिली तो मुझे एक नई चीज मिली, एक नई दुनिया मिली जिसमें मुझे सुकून मिलता है। ये भी बहुत खूबसूरत चीज है कि अक्सर मिनिएचर पेंटिंग में आप अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट या किसी बादशाहों की है जिसकी बनाते हैं तो उसमें आप ओवल वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना हाँ हाँ अक्सर। ये भी बड़ा तो बड़ा इसमें मैंने सिंबल उसका भी है। हाँ, इसमें मैंने उस ओवल में मैंने सिर्फ पीस दिखाए, सिर्फ फर पेंट किए मैंने। ये हाँ बहुत ही फाइन लाइंस हैं, बहुत ही फाइन काम है ये जो आपका है। हाँ। आपको हजरत अली का एक कोटेशन था कि मैंने अपने इरादों को टूटने से ही अल्लाह को पाया, यानी जो मेरे इरादे थे, मेरे ख्वाहिशात थे, वो टूट गए तो तब मैंने अल्लाह को पाया। तो बिल्कुल यही सही कह रहे हैं। काफी जगह पे लाजमी नहीं आपको हर चीज मिल जाए। मुझे काफी चीजें बिल्कुल जब नहीं मिली, मुझे उससे बेहतरीन चीजें फिर बाद में मिली। अगर वो चीजें बिल्कुल मुझे मिल जाती, मैं भी जो बाकी जो बच्चे जो एक लग्जरी लाइफ में बड़े हो गए, तो मैं आज वो ना बनता जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं हूँ। हाँ आपका काम जो है ना वो आपकी एज से ज्यादा मैच्योर है। आपके काम में वही सोच रही थी कि आपके काम मतलब जो उस स्टेज पे जो होता है ना, बल्कि कुछ काम मैं आपका देख रही थी जो शायद शुरू में थीसिस का था, ये काम उससे बहुत ज्यादा मैच्योर है और आपकी एज से ही बहुत ज्यादा मैच्योर है। मुझे तो लगता है माशाल्लाह जब आप हमारी एजेस तक पहुंचेंगे तो फिर तो पता नहीं आप कहाँ होंगे लेकिन थैंक आपकी यू अपनी सो एज से ये बहुत ज्यादा मैच्योर काम है माशाल्लाह। आपकी जो पॉजिटिव बातें और मेरे लिए जो आपका रिव्यू है वो मुझे काफी एनर्जी देता है। थैंक यू सो मच। दैट्स गुड। हाँ नहीं बात अच्छा है क्योंकि एक लेवल होता है ना काम का जो आपको नजर आ जाता है कि मतलब ये ज्यादा आगे का लेवल है, क्योंकि इस एज पे ये लेवल जो है ना ये अचीव करना ये बहुत ज्यादा मेच्योर एज में होना चाहिए। तो आपका माशाल्लाह अभी से वो मेच्योरिटी बहुत ज्यादा है उसके अंदर। थैंक यू सो बहुत मच। फाइन है, बहुत फाइन काम। थैंक ठीक यू है सो मच। बेटा, आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सर को हम इजाजत दें? इंशाल्लाह जो आपने बात की है ना ये जो वर्कशॉप टाइप की या इस किस्म की कभी अरेंजमेंट हो सके, क्योंकि हमें सामने बैठ के करना वो भी एक अच्छा हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है ऑनलाइन शायद उस तरह से मुश्किल हो कि इनको नजर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर कभी हमें जब भी कभी मौका मिलेगा तो हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे इसके लिए कि जो है ना, या कभी आपकी अपनी कोई अगर होती है एग्जीबिशन या कोई चीज है जिसमें आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, जैसे अभी हमने इस्लामाबाद में बच्चे गए थे देखने आपको, तो उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहां जाके देखना तो कुछ और ही चीज थी ना, मतलब इमेज में देखना बिल्कुल कुछ और बात है, लेकिन वहां उसके सामने खड़े होके देखना बल्कि ये भी बड़ा अच्छा है। मेरा जब नेक्स्ट शो इंशाल्लाह दोबारा सतरंग में, तो फिर ठीक है। मैं इस तरह करूंगा कि वहां पे मेरी ऑलरेडी पेंटिंग लगी होगी, तो मैं जी जी एक दो दिन के लिए आके वहां पे वर्कशॉप दूं, तो हाँ दैट विल बी प्लीज गुड। डेमो हाँ कीजिए उसका जरूर, दे हाँ विल हाँ लव टू सी दैट, सब देखना हाँ पसंद करेंगे। हाँ, जो मटेरियल्स है वो लाके और सारा कुछ उनको दिखाऊं कि किस तरह से होता है, ब्रश कैसे बिल्कुल होती है और सारा कुछ, फिर थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दूं। तो दैट विल आई रियली लव के जो जो चीजें हमने सीखी है और आगे हम सिखाए, तो देखो बिल्कुल ऐसी बात है। यही चीजें होती है ना जो आप सीख के दोबारा सिखाएं लोगों को। आई रियली लव दैट। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। हाँ ठीक है, कोई और क्वेश्चन पूछना बेटा या बस हम वाइंड अप कर लें? और हम वी शुड वाइंड अप नाउ। थैंक यू सो मच रहीम हमें दोबारा टाइम देने के लिए, क्योंकि आप हमें पहले दे चुके हैं और आप ही से हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज एन अनऑफिशियल वन, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत इंस्पिरेशनल था हमारी क्लास के लिए और इस क्लास के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह विल बी कम्युनिकेटिंग विद यू। जी 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 ब्यूटीफुल बताइए। टॉक विद यू, और आपने इतने अच्छे तरीके से सारा कुछ बल्कि मेरे काम को भी समझा और उसी के थ्रू आपने फिर बातें की, दैट वाज रियली लवली। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, टेक केयर। हाफिज। हाफिज।